આપણે આજે વાત કરીશું, પરંતુ તે પહેલા આપ સૌને જણાવી દેવા માંગીશ કે અમારી સાથે અત્યારે કાર્યક્રમના અંદર ઉપસ્થિત છે રાજકીય વિશ્લેષક કે જે અલ્કેશભાઈ પટેલ છે. અલ્કેશભાઈ, સ્વાગત છે આપનો કાર્યક્રમમાં. અલ્કેશભાઈ, 16 દિવસથી મધ્યપ્રદેશની અંદર જે રાજકીય ડ્રામા ચાલી રહ્યો છે, આખરે હવે થોડા સમયની અંદર તેનો અંત આવતો જોવા મળી શકે કે કેમ? બિલકુલ પૂરી શક્યતા છે અને લગભગ ધારણા એવી છે કે કમલનાથ અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે, આપણે થોડી વારમાં તૈયારી જ હશે, આપણી વાત ચાલુ હશે દરમિયાન. તો એવી ધારણા છે કે કદાચ એ વિધાનસભા ગૃહમાં ગયા વિના જ રાજીનામું આપી દે, કારણ કે 22 ધારાસભ્યો રાજીનામા આપી દીધા છે ને એ મંજૂર કરી લેવામાં. ગઈકાલે મોડી રાત્રે અધ્યક્ષ દ્વારા બાકીના જે 16 માટે જે આગ્રહ રાખતા હતા કે રૂબરૂ આવે તો જ હું માનું, પણ સુપ્રીમ કોર્ટના કડક વલણ પછી એમને લાગ્યું કે હવે આમાં વધારે ખેંચી રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી, એટલે એમણે જે 16 બાકીના હતા ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના એના મંજૂર કરી લીધા. એટલે હવે આમ પણ સંખ્યા કોંગ્રેસ પાસે ઘટી ગઈ છે. પહેલાં પણ ઓછી જ હતી, એની પાસે બહુમતી હતી જ નહીં. જે દિવસે એને સરકાર બનાવી, કમલનાથે શપથ લીધા મુખ્યપ્રધાન તરીકે 18 મહિના પહેલાં, ત્યારે પણ બીજા પક્ષો બસપા અને અપક્ષના અને બધાના ટેકાથી સરકાર બનાવી હતી, એટલે આમે લઘુમતીમાં તો હતી જ કોંગ્રેસ. પણ એ પછી સિંધિયાની નારાજગીને કારણે એમના જે મક્કમ ટેકેદારો હતા એ બધા જ રાજીનામા આપવા તૈયાર થઈ ગયા, આપી દીધા. એટલે સ્થિતિ કથળી ગઈ. ગઈકાલ બપોર સુધી, જ્યાં સુધી સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ નહોતો આવ્યો, ત્યાં સુધી કોંગ્રેસને એવું હતું કે આપણે અલગ અલગ રીતે કોઈપણ રીતે દબાણ લાવીને જે 22 હજુ પણ જે 16 ત્યાં છે કર્ણાટકમાં, બેંગલુરુમાં, એમાંથી કોકને સમજાવી શકીશું, કોઈ પણ રીતે સામદામ દંડ ભેદથી એમાંથી મોટાભાગનાને આપણે રાજીનામા પાછા ખેંચાવી લઈશું, એવી ક્યાંક ગણતરી હતી. અને એ કારણે એમણે પકડી રાખ્યું હતું. ને એ કારણે જ્યારે 2 દિવસ પહેલાં સત્ર મળ્યું રાજ્યપાલના કહેવાથી ફ્લોર ટેસ્ટ માટે, જ્યારે સત્ર મળ્યું સોમવારે, ત્યારે તરત જ રાજ્યપાલની એમને પણ 5-7 વાક્યો બોલવા દઈને અધ્યક્ષે ગમે તે રીતે સત્ર બંધ કરી દીધું. પણ તમામ પ્રકારના એમના પ્રયત્નો કોંગ્રેસના નિષ્ફળ ગયા અને મને લાગે છે કે હવે કમલનાથ શક્ય છે કે રાજીનામું આપે, અથવા તો કોઈક બીજું એવું કંઈક બહાનું કાઢીને પછી ગૃહમાં જાય અને 3 વાગ્યા પછી 3 થી 5માં આખી ચર્ચાને થાય અને એનો મત લેવાય એ પહેલાં રાજીનામું આપે. પણ એટલું નક્કી છે કે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે નહીં. પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન પણ રાજીનામું આપી શકે છે, અથવા તો ગૃહમાં જઈને ચર્ચા કરીને પોતાને જે કંઈ કોંગ્રેસ ભાજપ વિરુદ્ધ જે કંઈ કહેવું છે, મધ્યપ્રદેશ ભાજપ વિરુદ્ધ, એનું સ્ટેટમેન્ટ કરશે મુખ્યપ્રધાન તરીકે ત્યાં ગૃહમાં રહીને, અને પછી એ ટેસ્ટ વિના જ, સંખ્યાબળનું સાબિત કર્યા વિના જ રાજીનામું આપવા નીકળી જશે. આવા 2 શક્યતાઓ છે અત્યારે. જી ચોક્કસ. તો જે પ્રમાણે સાંજે 5 કલાકે ફ્લોર ટેસ્ટ થવાનો છે, ને જો આ પહેલા જે શક્યતાઓ અત્યારે પ્રબળ જોવા મળી રહી છે એ જ શક્યતાઓ સત્યતામાં ફેરવાય તો પછી ચોક્કસ ફ્લોર ટેસ્ટનો કંઈ સવાલ જ ઊભો નથી થતો. ને તેની સાથે જ જે પ્રમાણેનું ગણિત અત્યારે બેસી રહ્યું છે, છેલ્લા ઘણા સમયથી કેટલાક દ્રશ્યો તો ક્લિયર જ થઈ ચૂક્યા છે, કે કેટલીક વાત ક્લિયર થઈ ચૂકી છે, કે તેના પર ફૂલ સ્ટોપ વાગી ચૂકી હોય તો લાગી રહ્યું છે. પણ શું આખરે હવે 1.5 વર્ષ બાદ શિવરાજની સરકાર બનશે કે કેમ? હા, બની શકશે. એટલા માટે કે કોંગ્રેસના 22 સભ્યોના જો રાજીનામા સ્વીકારાઈ ગયા છે, એટલે હવે વિધાનસભાનું જે સંખ્યાબળ છે એ આપોઆપ નીચે આવી ગયું છે. 230ને બદલે હવે 206 થઈ ગયું છે. આ સંજોગોમાં તમારે બહુમતી પુરવાર કરવા માટેની સંખ્યા પણ ઓછી થઈ જાય. એટલે એ કારણે પણ તમારે ભાજપની 107 સભ્યો તો છે જ પાછા વિધાનસભામાં. એક અત્યારે જે છેલ્લા 2 કે 3 મિનિટ પહેલાંના જે સમાચાર છે એમાં એવું છે કે ભાજપના એક સભ્યે રાજીનામું આપ્યું હતું, ભાજપના એક MLA, એનું ત્યાંના અધ્યક્ષે, વિધાનસભા અધ્યક્ષે પ્રજાપતિએ સ્વીકારી લીધું છે. એટલે ભાજપની સંખ્યાબળ 107ના બદલે 106 થઈ ગયું છે. તો પણ
બહુમતી પુરવાર કરવા માટે એની પાસે સંખ્યાબળ છે અને જે બસપાના જે સભ્યો અને બીજા અપક્ષ સભ્યો જે કોંગ્રેસને અત્યાર સુધી ટેકો આપતા હતા એ બની શકે કે હવે સત્તા પરિવર્તન થાય તો એમને તો કોઈ બહુ એવા કોઈ સિદ્ધાંત કે પેલા હોતા નથી. જ્યારે જેને સૌથી પહેલો પ્રેફરન્સ કોંગ્રેસ કે જે સેક્યુલરને જે એક પેલી છબી છે એમને આપતા હોય છે, પણ પછી જ્યારે સત્તા બદલાય તો એ ભાજપને આપી શકે છે. એટલે આ જોતા ફરીથી શિવરાજ સિંહની સરકાર બની શકે એવું બને. ચોક્કસ ચોક્કસ. તો ખાસ મધ્યપ્રદેશમાં જે રાજકીય ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે, આ ઘમાસાણને લઈને વિધાનસભા સ્પીકર એનપી પ્રજાપતિની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી રહી છે. આવો નિહાળીએ. इसके उपरांत आज दिनांक 19/3/2020 तक उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, जबकि मैं इस अवधि में भोपाल में हूं. आप भी जानते हो मैं भोपाल में हूं. सभी कैमरा टीम और सभी माननीय चैनल जानती है कि मैं यही हूं. पर उन्होंने मेरे सम्मुख आके कोई बात नहीं की. इस प्रकार दिनांक 17/3/2020 को दिया गया पत्र दबाव दिया जाना प्रतीत नहीं होता है. दबाव बस जो उनके मेरे कार्यालय में दे वो प्रतीत होता है. जबकि दिनांक 6/3/2020 को दिया गया पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर कर संबंधित द्वारा मुझे स्वयं सौंपा गया, जिसमें किसी दबाव की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है. अतः विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 276 के अधीन उक्त सदस्य द्वारा दिया गया त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है. आदेश अधिसूचना जारी की जाए. सर, और ये नारायण त्रिपाठी की बात हो रही थी बीजेपी एमएलए की, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, क्या मिला था आपको? मेरे पास ऐसा कोई इस्तीफा विचारार्थ में नहीं आया. और तो अभी तक सदन में 2 पद पहले से खाली थे, 22 और ये 23 इस्तीफे आपने अभी तक स्वीकार कर लिए हैं. मैंने कल रात में भी कहा था, मेरे ख्याल से विधानसभा का इतिहास है कि इतने ज्यादा संख्या में विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करना एक अध्यक्ष को कितना भारी लगता है, कितना दुखी मन होता है. किंतु क्या करें, सदस्य स्वमेव इस्तीफा दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, कोर्ट तक में बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं जाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें. तो मुझे ये सब कार्रवाई नियम प्रक्रिया के तहत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और संविधान में जो मुझे निहित प्रक्रियाएं दी हैं उसका पालन करना जरूरी होता है. सर, आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग हो रही है. देखिए, लोकतंत्र में ये बड़ी विडंबना आ गई है कि जनता किस हेतु के लिए आपको चुन के पहुंचाती है, क्षेत्र में क्या करने के लिए पहुंचाती है, और आने के बाद आप क्षेत्र को नजरअंदाज कर दें और स्वयं को सोचने लगें तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं. सर, आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए सारे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है कि ये सारे फोर्सफुल थे? बिकॉज कई बार वीडियोस आई जो बेंगलुरु से, देखिए, वीडियो में उन्होंने बोला, बट अभी भी आपको लगता है फोर्सफुल रेजिग्नेशन आए हैं आपके पास, 2 आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं. देखिए, अब मैं उसमें मैंने कल रात में, चूंकि आप नहीं थे, मैंने वस्तु स्थिति रख दी थी. कोर्ट में तक, सुप्रीम कोर्ट में तक वो लोग गए और उन्होंने बोला कि लिखित रूप से उनके वकील ने कहा कि ना हम जाना चाहते हैं, माना जाए हमने दे दिया है और आप कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हो, उनके वकीलों ने कहा. तो जब ये सब चीज़ें हो गई और ये सब नियम प्रक्रिया में चल रही हैं, तो मेरे पास फिर अंतिम फैसला यही रह जाता कि उनके इस्तीफे स्वीकार करूँ, और जो मैंने कर लिए. सर, बीजेपी आरोप लगाएगी कि ये सारी चीजें बाद में जिस तरह से देखिए, मैं निष्पक्ष हूं. जो मेरे विषय में बात लाई जाती है उस पर मैं विचार करता हूं. आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना तो राम के ऊपर भी लगा दिया था, माँ सीता के ऊपर भी लगा दिया था एक व्यक्ति ने. तो हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लो टेस्ट की क्या तैयारी है? भाई, मेरी द्वारा दैनिक कार्य सूची जो जारी होती है रात में 1 बजे कर दी गई है, 2 बजे से विधानसभा आहूत की गई है. सर, एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं आपकी
આવી રહ્યા છે કમલનાથ પહોંચી ચૂક્યા છે થોડી જ વારમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ શરૂ થઈ જશે 1 વાગે રાજ્યપાલને મળવાના છે 1 વાગે રાજ્યપાલને મળવા માટેનો પણ સમય તેમણે માંગ્યો છે પ્રેસ કોન્ફરન્સના દ્રશ્યો જે થોડી જ વારમાં શરૂ થવાની છે કમલનાથ પહોંચી ચૂક્યા છે આપને જણાવી દે કે ઘણી જ બધી આશાઓ અને સેવાઈ રહી છે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સને બાદ ઘણા બધા નિર્ણયોના જવાબ પણ સામે આવી શકે છે ત્યારે આપને જણાવી દે કે ખાસ हेलो हेलो ये चल रहा है पत्रकार बंधु आ रही है ये थोड़ा ऊंचा कर दो हेलो हेलो क्या आवाज તો કમલનાથ પહોંચી ચૂક્યા છે થોડી જ વારમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ શરૂ થઈ જશે આપને જણાવી દે કે આખરે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પાછળનું કારણ શું છે તે પણ સામે આવી જશે તો બપોરે हाँ सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया परिणाम स्पष्ट था कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई थी 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली मुख्यमंत्री की शपथ ली और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें प्रदेश की तस्वीर बदले मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा जब मैं केंद्र में था यूपीए सरकार में था मैं मंत्री था जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने प्रदेश पर विश्वास लोगों पर होए मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से नहीं है मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे आज तक मुझे 15 महीने मिले जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को हर 15 दिन कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है ये सरकार 15 दिन की सरकार है कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे ये सब आप गवाह पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों
को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोभियों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए, ताकि जनता शक्तिशाली बने। ये मेरी इच्छा थी। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। 3 दफे हमने कही, 3 दफे वोटिंग हुई, हमने अपनी बहुमत साबित की। हमने जब ये बहुमत साबित करी, उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं, ये विश्वासघात मेरे साथ नहीं, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है। उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। 15 महीनों में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है। 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक लगी। किसानों के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। 15 महीनों में हमने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया। भाजपा नहीं चाहती थी कि माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाए, ये अभियान चलाया जाए। और माफिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह बनती हर नागरिक जानता है। मेरा प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की। भाजपा के शासनकाल में जितनी बेरोजगारी बढ़ी थी, हमारा प्रयास था इसमें रोक लगाई जाए और हमारे भाजपा के हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नए मौके बने। 15 महीनों में हमने मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए शुद्ध का युद्ध का अभियान चालू किया।
भाजपा नहीं चाहती थी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ हो। प्रदेश की सड़कों पर घूम रही हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया। ये भाजपा को रास नहीं आया। इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से प्रदेश की जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली प्रदान, जिसकी फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ नागरिकों को हुआ। ये भाजपा नहीं चाहती थी कि ये सुविधा मिले। ये भाजपा को रास नहीं आया। प्रदेश के नाम विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए, प्रदेश विश्व पटल में पहुंचाने के लिए ये हमने प्रयास शुरू किया और प्रदेशवासी इसके गवाह हैं कि किस प्रकार से हमने कार्य कर किए। कन्या विवाह में 28,000 से बढ़कर 51,000 रुपए भाजपा को ये रास मिला है, ये भी हमने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया, ये भाजपा को रास मिला है। राम वन पर गमन के निर्माण का संकल्प लिया। श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ये भाजपा को रास दिया है। महाकाल मंदिर की व्यवस्था विस्तार को लेकर 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। हमने ओंकारेश्वर मंदिर के विकास को लेकर लगभग 145 करोड़ की योजना बनाई, ये भाजपा को रास मिला है। पुजारियों का मानदेय 3 गुना हमने बढ़ाया, ये भाजपा को रास मिला है। आदिवासी भाइयों को सरकारी ऋण से मुक्ति दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत शादी और मृत्यु होने पर सहायता का प्रावधान किया। आदिवासी इलाकों में 40 एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। वन अधिकार के पट्टे दिलवाए तथा इस वन के उत्थान की भलाई के लिए कई कार्य हमने शुरू किए। 15 महीनों में हमने अपना वचन पत्र, हमारा वचन पत्र 5 साल का था, 15 महीनों में 400 वचनों को पूरा किया। 21,000 अधूरी घोषणाएं वाली भाजपा की हमारी वचनों को पूरा करने का ये रास किया है। पिछले वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, जिससे इस वर्ग का उत्थान व विकास हो सके। भाजपा को ये रास नहीं आया। आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया, भाजपा को ये रास नहीं आया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का कार्य प्रारंभ किया, भाजपा को ये रास नहीं आया। प्रदेश में निरंतर निवेश आता है। प्रदेश में निवेश आए, एक नया विश्वास, निवेश विश्वास से आता है। देश में मध्य प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जहां लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो। हमने कोई झूठी इन्वेस्टर्स मीट नहीं करी, झूठी घोषणाएं इसमें नहीं करी, पर हमने एक शुरुआत की। मैं और नहीं जानना चाहता कि प्रदेश के हित में बहुत सारे जो हमने उल्लेखनीय निर्णय किए, जिनकी सूची काफी लंबी है। भाजपा को हमारे जन हितैषी कामों से यह भय आने लगा कि प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में अब शायद कभी ना आए। प्रदेश की जनता इस सच्चाई को जानती है। मैंने इन 15 महीनों में दिन रात कार्य कर प्रदेश का प्रोफाइल बदलने का काम किया और प्रदेश के पिछले 15 सालों
की तस्वीर भी अपने प्रदेश की जनता को दिखाई। 15 महीनों में हमारे ऊपर किसी भी घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रदेश की जनता ये महसूस किया कि सरकार क्या होती है, जन हितैषी कार्य क्या होते हैं। भाजपा कितनी भी साजिश रचते, विकास के पथ पर हम सदैव रहेंगे। चुनौतियों का डटकर हम मुकाबला करेंगे। कर्तव्य के पथ पर ना हम रुकेंगे, ना डिगेंगे, ना झुकेंगे। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि जनता का प्रमाण पत्र मुझे मिलेगा, हमारी सरकार को मिलेगा। मुझे भाजपा का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे प्रदेश की जनता का प्रमाण पत्र चाहिए। मैंने इन कामों की सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है और मुझे जनता का प्रमाण पत्र मुझे विश्वास है आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले दिन से ये कहा कि एक सफल सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने जा रही है, इससे इसको भय था। भाजपा सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे। ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले को, या जितना सदैव मेरे प्रदेश के साथ करेंगे उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा कुछ मूल्यों का पालन किया है और ये मूल्यों का पालन मैं करता रहूंगा। भाजपा सोचती है कि ये जो शरण इन्होंने रचा है, इससे सफलता प्राप्त करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कभी सफल नहीं होगा। मेरा संकल्प है कि जहां भी रहें, हमारे पास पद हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहेंगे। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए। कौन से जन? 16। 9 मार्च को तो 16 को ले गए। किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा। जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह, कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सका। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया।
अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया। ये तो मैंने सदन में कहा था और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य, मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको